Hello everyone. Last time we were discussing about use of shall and use of will. So I think these all are clear to you. So today we are going to start our next model, that is use of should. So further any delay, let's get started. Use of should. Used in the past tense form of shall in indirect speech. कि शुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? शुड इज़ यूज इन द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच. कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर शैल के पास्ट टेंस फॉर्म में जो है शुड का यूज़ हम करते हैं. शैल क्या होता है? हमारा प्रेजेंट, और शुड होता है इसका पास्ट टेंस फॉर्म. तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, I shall not do this work. So here you can see the direct speech. Now it is changed into indirect speech. I said that I should not do that work. So here you can see shall is changed into should. So should is used in the past tense form of shall in indirect speech. Next is, he said to me, will you help me? He asked me if I should help him. So here should is also used in indirect speech. So these are some examples of should, that should is used in the past tense form of shall in indirect speech. Next is, to express moral obligation or duty. That should is used in moral obligation or duty. कि शुड का जो यूज़ होता है वो मॉरल ऑब्लिगेशन और जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम करते हैं. एग्जाम्पल, वन शुड लव वंस कंट्री, वी शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड क्वारल विद योर फ्रेंड, and children should obey their parents. So these are some examples. इनके थ्रू moral obligations जो होते हैं और जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमने should का यूज़ किया है. कि one should love one's country, कि हम सभी को क्या करना चाहिए? हम सभी को अपने देश से प्यार करना चाहिए. We should not tell a lie, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, हमारी moral ड्यूटी है. And you should quarrel with your friend, कि तुम्हें अपने दोस्त के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए. You should not quarrel with your friend. And children should obey their parents. बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हें अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनकी बात माननी चाहिए. Next is to express moral obligation or duty. That should is used to express moral obligation and ड्यूटीज़. कि शुड का यूज़ हम किस में करते हैं? जो मॉरल ऑब्लिगेशन होते हैं, जो हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारी मॉरल, और जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, वन शुड लव वंस कंट्री, और वी शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट क्वारल विद योर फ्रेंड, चिल्ड्रन शुड obey their parents. So these are some examples, and here you can see we are using should and should. So should is used to express moral obligation and duties. कि हम सबको क्या करना चाहिए? ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए? अपने दोस्त से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें किसी दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए. एंड बच्चों को अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी बात माननी चाहिए. सो दीज आर सम मॉरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, एंड इन दीज ड्यूटीज़ और मॉरल ऑब्लिगेशंस वी हैव टू यूज़ शुड. कि हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें शुड का यूज़ करना है. नेक्स्ट इज़, फ्रेंड शुड सपोर्ट ईच अदर इन एवरी सिचुएशन. कि हर एक दोस्त को क्या चाहिए कि भी किसी भी सिचुएशन में, चाहे कैसे भी सिचुएशन आ जाए, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए उन्हें.
So these are some moral obligation and duties, and in these moral obligation and duties we should have to use should. Next is you should attend each live class in time. आप सभी को लाइव क्लास, जो हर एक जो लाइव क्लास होती है उसे टाइम पर अटेंड करना चाहिए. सो इट्स योर मॉरल ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी. नेक्स्ट इज नॉट. should have is used to express past duty. कि if we are using should plus have then it is used to express past duty. तो ये past की जो duty होती है उसको express करने के लिए हम should के साथ have का use करेंगे. Example, I should have attended the meeting yesterday but I forgot all about. He should have paid the money long ago. So here should have is used. You can see in the first sentence and in the second sentence also. So should have is used to express past duty, जो past की duty कि I should have attended the meeting yesterday. मुझे कल मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी but I forgot all about. लेकिन मैं इस बारे में सब भूल गया. He should have paid the money long ago. उसे बहुत टाइम पहले ही जो पैसा है इसे ये पे कर देना चाहिए था, लेकिन उसने पे नहीं किया. तो शुड हैव इज यूज टू पास्ट ड्यूटी, टू एक्सप्रेस पास्ट ड्यूटी. सो नेक्स्ट रूल इज टू गिव एडवाइस. शुड इज यूज टू गिव एडवाइस. जो एडवाइस देने का जो भाव होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स. यू शुड abstain from wine. So these are some examples. Then someone is giving us advice that you should not laugh at his mistake. कि हमें उसकी mistakes यानी कि तुम्हें जो है उसकी mistake पर हंसना नहीं चाहिए था. You should abstain from wine. तुम्हें wine से दूर रहना चाहिए. So it's an advice. So advice देने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ should का कर सकते हैं. Like you should not laugh at his mistakes. आपको उसकी mistakes पर हंसना नहीं चाहिए. एंड आपको वाइन से दूर रहना चाहिए. आपको वाइन पीनी छोड़ देनी चाहिए. सो दीज आर सम एडवाइजेज. नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड नेक्स्ट रूल इज टू एक्सप्रेस सपोजिशन इन कंडीशनल सेंटेंसेस. कि शुड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जो सपोजिशन होती है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, इमेजिनेशन जो होती है, जो भी हम इमेजिन करते हैं, तो उसके अंदर हम शुड का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, इफ़ इट शुड रेन दे विल नॉट कम. एंड इफ़ शी शुड सी मी हियर शी विल बी अनॉयड. तो ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस है, कंडीशनल क्लॉजेज हैं. और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने शुड का यूज़ किया है. सो इफ़ इट शुड रेन, अगर बारिश होती है तो क्या है? वो नहीं आ पाएंगे. कंडीशनल सेंटेंसेस है. इमेजिनेशन, इमेजिन कर रहे हैं, वो सपोज कर रहे हैं कि अगर बारिश हुई, अगर बारिश होती है तो वो नहीं आ पाएंगे. एंड इफ़ शी शुड सी मी हियर शी विल बी अनॉयड. कि अगर वो यहाँ मुझे मिलने के लिए आती है, मुझे देखने के लिए आएगी, मुझे मिलने के लिए आती है, तो वो मुझे देखकर चिंतित हो जाएगी. शी विल बी अनॉयड. इमेजिनेशन है कि जो मेरी कंडीशन है, मेरी जो स्थिति है, अगर वो मुझे इस हाल में देख लेती है तो वो क्या हो जाएगी? वो चिंतित हो जाएगी. सो इट्स एन सपोजिशन. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. If we are talking about possibility, so should is used to express possibility. Example, I think he should come tomorrow. They should win the match. So I think he should come tomorrow means possibility है कि मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि वो कल आ सकता है, वो कल उसे कल आना चाहिए. And they should win the match. उन्हें मैच जीतना चाहिए, वो मैच जीतेंगे.
यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, उनके मैच जीतने के चांसेस हैं, उसके वो कल आ सकती है, ये चांसेस हैं। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का यूज़ किया है। बट शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी इन कंडीशनल क्लॉजेज एंड दिस डिनोट डाउट। कि शुड का यूज़ क्या होता है, लेस पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशनल क्लॉज के अंदर हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या शो करता है, यहाँ पर दिस डिनोट डाउट, डाउट को एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक एग्जाम्पल देखिए इसके, जो डाउट की जो सिचुएशन होती है, लाइक इफ़ शी शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी। सो यहाँ पर क्या बताया गया है, ऊपर जो ये एग्जाम्पल है इसमें ये बताया गया कि इफ़ ही शुड कम, मीन्स उसके आने की क्या है, पॉसिबिलिटीज़ कम है, उसके आने के चांसेस बहुत कम है। अगर वो आता है, वैसे तो आने के चांसेस नहीं है उसके, अगर वो आ भी जाता है, इफ़ ही शुड कम, अगर वो आता है तो आस्क हिम टू वेट फॉर मी, तो उससे कहो कि वो मेरा वेट करें। तो यहाँ पर जो ये शुड है, ये किस में यूज़ किया गया है, कंडीशनल क्लॉज के अंदर हमने यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पर ये कैसे सिचुएशन है, डाउट वाली सिचुएशन। जब डाउट वाली सिचुएशन होती है तो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अगर हम शुड का यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ शोइंग डाउट सिचुएशन। सो डाउट सिचुएशन के लिए हम शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल इज़ टू एक्सप्रेस purpose and result in the clause starting with so that or in order that। कि जो so that और in order that से जो जितने भी स्टार्ट होने वाले क्लोजेज होते हैं, जो पर्पज़ एंड रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहाँ हम शुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, we did it carefully so that one should see it। He did it in order that all should be satisfied। So यहाँ ये जो दोनों एग्जाम्पल्स है इसमें क्या बताया गया है कि we did it carefully। देखिए ये जो क्लॉज है, देखिए ये किससे स्टार्ट हुआ है, इट स्टार्टेड विद so that से स्टार्ट हुआ है। so that से स्टार्ट होने के कारण ये क्या क्लॉज है, one should see it। हमने बड़ी ध्यान से किया है ताकि क्या, वन शुड सी इट, ताकि हर एक इसे देख सके। पर्पज़ क्या है उसका, सही काम करने का, कि हर एक उसे आसानी से देख सके, उसे ऑब्जर्व कर सके। ही डिड इट इन ऑर्डर दैट ऑल शुड बी सेटिस्फाइड। उन्होंने ये ऐसा इसलिए किया ताकि उसका ऑर्डर, मतलब इन ऑर्डर दैट मतलब उसका रिजल्ट क्या निकले कि ऑल शुड बी सेटिस्फाइड, कि सभी सेटिस्फाई हो सके। तो यहाँ पे क्या है, पर्पस के बारे में बताया गया और यहाँ रिज़ल्ट के बारे में बताया गया। तो पर्पस और रिज़ल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जो क्लॉज जो हैं वो सो दैट, अगर इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होते हैं तो वहाँ हम शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट टू एक्सप्रेस नेगेटिव पर्पस। कि हम शुड का यूज़ कहाँ करेंगे, शुड का यूज़ हम लेस्ट के बाद जो नेगेटिव पर्पस होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए करेंगे। एग्जाम्पल, ही रन फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सो हियर यू कैन सी देयर आर टू एग्जाम्पल्स एंड वी आर यूजिंग लेस्ट। हियर ऑल्सो लेस्ट। सो लेस्ट, आफ्टर लेस्ट वी यूज़ शुड। कि लेस्ट के साथ आपने क्या करना है, आपने हमेशा शुड का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेक हीड लेस्ट यू शुड फेल। So here lest is used and we are using should. So after lest we have to use should. Next example, used after verbs or phrases in subordinate clause to express determination, willingness, threats, order or promise। कि शुड का यूज़ जो सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर जो वर्ब्स होती हैं या फिर फ्रेजेस होते हैं उनके बाद जो डेटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट्स, ऑर्डर्स और प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल,
I promised my son that he should have a new book. I have ordered that he should play today. The officer gave orders that we should be well looked after. So यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट, ऑर्डर्स और प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का यूज़ किया गया है. आई प्रॉमिस, यहाँ पे क्या है, प्रॉमिस है कि मैंने अपने बेटे को क्या प्रॉमिस किया, दैट ही शुड हैव अ न्यू बुक, कि उसे एक नई बुक मिल जाएगी. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉमिस है. दूसरी बात, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर वर्ब्स के लिए हमने किसका यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है प्रॉमिस का. नेक्स्ट इज देखिए, आई हैव ऑर्डर्ड दैट ही शुड प्ले टुडे. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है कि उसने ऑर्डर दे दिया है दैट ही शुड प्ले टुडे, कि वो आज ही खेलेगा. एंड द ऑफिसर गेव ऑर्डर्स दैट वी शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर. और ऑफिसर्स ने क्या ऑर्डर दिए हैं, दैट वी शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, कि हम लोगों की अच्छे से देखभाल की जाएगी. सो यहाँ पे क्या है, इट्स अ प्रॉमिस. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस फॉर्मल नोटिसेस और इंस्ट्रक्शंस, कि जितने भी फॉर्मल नोटिसेस होते हैं और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम शुड का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस. योर application should reach here before 26 Jan 2021. तो यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ पे जितने भी ये फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं या नोटिसेस हैं कि भी कैंडिडेट्स को क्या करना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. एंड योर एप्लीकेशन, के आपका जो एप्लीकेशंस हैं वो 26 जैन तक क्या है, पहुँच जाने चाहिए. सो दीज आर सम इंस्ट्रक्शंस एंड नोटिसेस. यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है शुड का, कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस होंगी या फिर नोटिसेस होंगे फॉर्मल, तो वहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस कंडीशन. ये शुड का यूज़ हम कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी करेंगे. एग्जाम्पल, शुड ही नॉट कम, व्हाट शैल वी डू. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इफ़ ही शुड नॉट कम व्हाट शैल वी डू, कि अगर वो नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे. कंडीशन क्या है कि उसे आना चाहिए, अगर वो नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. शुड एनीबडी ऑब्जेक्ट, डू नॉट कम, मीन्स अगर किसी को कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्शन है तो वो नहीं आएगा. मीन्स कंडीशन है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज़ पर, तो आप, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप नहीं आइएगा. अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है देन यू कैन कम. एंड इफ़ यू हैव एनी ऑब्जेक्शन देन यू नीड नॉट टू कम. नेक्स्ट इज देखिए, शुड इज यूज्ड इन प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ द सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग पोलाइट एडवाइस और इम्प्रूवमेंट. कि शुड का यूज़ जो जितनी भी अनरियल सिचुएशंस होती हैं तो प्रिंसिपल क्लोज के अंदर पोलाइट एडवाइस और इम्प्रूवमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, इफ़ ही वर यू ही शुड नॉट डू इट, एंड इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट चीट हिम. सो यहाँ देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज के जो सेंटेंसेस हैं उनके अंदर पोलाइट एडवाइस और इम्प्रूवमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमने शुड का यूज़ किया है. कि इफ़ ही वर यू ही शुड नॉट डू इट. इफ़ ही वर यू मीन्स अगर वो तुम्हारी जगह होता तो ही शुड नॉट डू इट, तो वो उसे नहीं करता. एंड इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट चीट हिम. यहाँ पर ये क्या है, थ्रेटन, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसको डांटने के लिए थोड़ा, ये हमने यूज़ किया कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई शुड नॉट चीट हिम, तो मैं उसे धोखा नहीं देता. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स वेयर वी आर यूजिंग शुड.
So I think these all are clear to you. So we'll meet in our next video with the new topic. So bye and have a nice day.